गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने व्हाट इज सेट, बिलोंग टू एंड टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे जो सेट्स के टू फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम दोनों फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म की कंडीशन क्या है कि एक भी एलिमेंट सेट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट रिटर्न इन लाइक दिस सेट। ओके, तो हमें ये कंडीशन को फॉलो करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a is equal to set of x from x is an integer. So first of all, what is integer? Which number is integer number? So -1, -2, -3, that means all this negative number as well as 0 as well as positive number, all number are integer form. Now here condition is present, -3 less than equal to x less than 7. Okay, now what is the meaning of less than? Equality is present, that means here we can include -3, and here strictly less than is present, that means here we cannot include 7. Okay, now here in -3 less than equal to x less than 7, that means all these integer number between -3 and 7, as well as here we can include also -3 because here less than equality form is present. So how can be written in roster form? So a is equal to set of, first of all here written element -3 comma -2 comma -1 0 1 2 3 4 5 and 6। यहाँ हमें 7 लिखना नहीं है because here less than equality form is not present. So here we can return up to 6 number. Okay, so a is equal to, our answer is -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 and 6. Okay, clear? Now next question, b is equal to set of x from x is a natural number less than 6. Okay, now which number is natural number? So 1 2 3 4 5 6 up to infinite number, all number are natural number. Now here condition is present, x is a natural number less than 6, that means natural number less than 6 means 1 2 3 4 5 and 6 number. Sorry, 6 here we cannot include because only less than form is present. So b is equal to set of, our answer is 1 2 3 4 and 5. Clear? Here we cannot include less than, means 6. Here less than or equal to form is not present, strictly less than form is present. So here we can return number 1 2 3 4 and 5 only. Okay, now next question, question number 3, c is equal to set of x from x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. So here two types of question is asked. First of all, 2-digit natural number. 2-digit natural number means which number are 2-digit natural number? So 10, 11, 12 up to 99, all number are 2-digit natural number. Now here sum of its digit is 8. तो हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं कि 2 डिजिट होने चाहिए और उसका सम है वो 8 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर आएंगे? तो c इज इक्वल टू, जैसे 17 है, राइट, 17 2 डिजिट नंबर है और उसका एडिशन करेंगे, हम सम करेंगे तो 8 आएगा। तो 10 to 20 के बीच में एक नंबर मिलेगा, 20 to 30 के बीच में भी एक नंबर मिलेगा। तो ऐसे जितने भी नंबर है हमें यहाँ मेंशन करना है। तो c इज इक्वल टू सेट ऑफ 17, 26,
35, एक एक नंबर, यहाँ एक नंबर बढ़ाना है, जैसे 1 2 3 बढ़ा है, ऐसे यहाँ एक नंबर डिक्रीज करना है, तब तो भी उसका सम है वो 8 आ जाएगा, ऐसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो 17 26 35 44 53 सॉरी ओके 62 71, राइट। अब आगे नेचुरल नंबर लिखना है तो 80, दैट मीन्स 18 नहीं आएगा। तो C इज इक्वल टू कंडीशन है सेट ऑफ x फ्रॉम x इज ए 2 डिजिट नंबर, तो ये सारे नंबर है 2 डिजिट नंबर है। और अनदर कंडीशन है सच दैट द सम ऑफ ईच डिजिट इज 8, तो इसका एडिशन करेंगे हम, सम करेंगे वो 8 आता है, तो और आंसर इज C। ओके, now next question, d is equal to set of x from x is a prime number which is divisor of 60. First of prime number, which number are prime number? So prime number, that means 2 3 5 7 11 13 17 19 all number are prime number। हमें ऐसा देखना है कि वो 60 को डिवाइजर करते हैं कि नहीं, तो ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 60 को डिविजिबल करते हैं। तो एक तो 60 डिवाइड बाई 2, सो हियर वी कैन रिटर्न टू 60 डिवाइड बाई 3, 60 डिवाइड बाई 5, तो ऐसे 3 ही प्राइम नंबर है जो डिवाइजर ऑफ 60 हो गए। सो आवर आंसर इज डी इज इक्वल टू 2 3 5। आगे के जो नंबर है 7, सो 60 डिवाइड बाई 7 नॉट पॉसिबल, 60 डिवाइड बाई 11 नॉट पॉसिबल, 60 divided by 13 not possible, 60 divided by 19 not possible, right? So ऐसे 3 नंबर है जो प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 60 है। क्लियर? नेक्स्ट है E is equal to set the set of all letter in the word trigonometry। तो इसको हमें कैसे लिखना है? तो फर्स्ट जो लेटर है उसको हमें लिखेंगे, ईच एंड एवरी लेटर के बाद में हम कॉमा करेंगे, और कोई भी लेटर है मीन्स नंबर्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो T लिखा, R लिखा, फिर नेक्स्ट है I G O N, अब वापस O है वो रिपीट हो रहा है तो हम दोबारा उसको नहीं लिखेंगे। M E, फिर से T रिपीट हो रहा है, फिर से R रिपीट हो रहा है, कॉमा Y सेट ओवर। ओके, तो इसका आंसर है रहेगा T कॉमा R I G O N M E एंड Y। क्लियर? ओके ओके, नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। आगे का जो क्वेश्चन था उसमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया था, उसको हमने कन्वर्ट किया था रोस्टर फॉर्म में। अब यहाँ जो है वो रोस्टर फॉर्म दिया गया है, उसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है सेट रोस्टर फॉर्म की, उसके हिसाब से वो कंडीशन को फॉलो करके हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3, 6, 9, 12 सेट ओवर, तो यहाँ टोटल 4 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हमें लिखना है ए, सपोज ये सेट है, उसको हम नंबर देंगे, डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। तो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ, यहाँ एक्स तो कंपल्सरी लिखना है, ये कॉलन का सिंबल भी लिखना है, एक्स इज इक्वल टू, अब ये कंडीशन कौन सी है? तो ये जो है वो 3 के मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल है तो उसका जनरल फॉर्म आएगा 3n। 3 के मल्टीपल है, सपोज 5 के मल्टीपल होते तो यहाँ हम लिखते 5n। ओके, अब ये जो है नेचुरल नंबर है तो अनदर कंडीशन हम ऐड करेंगे, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओके, यहाँ टोटल 4 नंबर है तो आगे भी एक कंडीशन ऐड करेंगे, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। दैट मीन्स यहाँ n की जगह पर हम 1 2 3 और 4 लिखेंगे तो तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
सो वंस अगेन हमें कैसे वर्कआउट करना है आप ध्यान से समझ लो। 1 मार्क का क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता है एग्जाम में, बिल्कुल केयरफुली। सेट ऑफ 3, 6, 9, 12 ये दिया गया है रोस्टर फॉर्म, उसको कन्वर्ट करेंगे सेट बिलर फॉर्म में। सो ए इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स, फ्रॉम भी बोल सकते हैं, कॉलन भी बोल सकते हैं। तो एक्स कॉलन एक्स इज इक्वल टू 3 के मल्टीपल है, तो 3 नेचुरल नंबर है तो n से डिनोट किया। स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कंडीशन दी गई है, मीन्स रखनी पड़ेगी यहाँ। एंड यहाँ टोटल 4 ही नंबर है, तो हम लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर। अब नेक्स्ट है b इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू, अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर है। अब ये 2 एंड 4 है, आफ्टर 8 है, डेट मीन्स 2 का पावर है, रिलेशन 2 के पावर में नंबर है। तो 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 5 है। तो यहां हम लिखेंगे 2 रेज टू n, अगेन स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, एंड कंडीशन जाएंगी टोटल 5 नंबर है, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर। फिर से b इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू, ये 2 रेज टू नंबर है, 2 का पावर है, 2 रेज टू 1 डेट मीन्स 2, 2 रेज टू, आपको वो डिसाइड करना है कि ये 2 के पावर में है या 2 के मल्टीपल में है, ऐसा आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो 2 का पावर है तो 2 रेज टू n लिखा, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख दिया, नेचुरल नंबर है सारे, एंड कंडीशन लिख दी बिकॉज ये टोटल 5 नंबर है, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। नेक्स्ट है उसको हम डिनोट करेंगे c से। 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, दैट मीन्स अगेन 5 का पावर है ये। ओके, 5 रेज टू 1 दैट मीन्स 5, 5 रेज टू 2 25, 5 raised to 3 125 and 5 raised to 4 625। तो C is equal to set of x colon x is equal to 5 raised to n, same condition, small n belongs to capital N, and total 4 number है, तो again here written 1 less than equal to n less than equal to 4, राइट। दैट मीन्स हम n की जगह पर 1, 2, 3 एंड 4 लिखेंगे। यहाँ सपोज यहाँ n की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर रखेंगे तो 5 रेज टू 1 मीन्स 5, n की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 स्क्वायर 25, n की जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 रेज टू 3 125 एंड 5 रेज टू 4 625। सो हियर वी गेट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, इसमें क्वेश्चन में आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 2 है, 4 है, 6 है, अप टू डॉट 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 है। तो यहाँ कुछ एंड नहीं दिया गया है, लेकिन ये सारे नंबर है वो नेचुरल नंबर है एंड ऑल्सो इवन नंबर है। तो हम लिखेंगे, इसको डिनोट करेंगे d इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल इवन नंबर लिखेंगे, नेचुरल इवन नंबर्स। ओके, सेट ओवर। तो यहाँ आपको दूसरा कुछ लिखना नहीं है, इस तरह से कंडीशन भी लिखनी नहीं है। यहाँ 2, 4, 6 अप टू इनफाइनाइट नंबर तक जाता है ये नंबर। सो d इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x इज अ नेचुरल इवन नंबर। आपको इवन नंबर मेंशन करना है बिकॉज ऑल नंबर आर इवन नंबर है। सेम टाइप का सिमिलर क्वेश्चन यहाँ आ सकता है 1, 3, 5 अप टू इनफाइनाइट। तो आपको आंसर में d इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम
x इज ए नेचुरल ऑड नंबर लिखना है। यहाँ 1 3 5 आता है तो आपको इवन की जगह ऑड नंबर लिखना है, बाकी सारी चीज सेम है। ओके, नेक्स्ट है ई, इसको डिनोट करते हैं ई। ओके, 1 4 9 अप टू 100। तो ये जो है कोई नंबर का स्क्वायर है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अप टू 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? तो x फ्रॉम x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n की पोजीशन हमें यहां रखनी है और 2 की पोजीशन उसके पावर में रखेंगे, कॉमा स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। एंड कंडीशन कौन सी लिखनी है आपको? तो 1 है, 4 है, 9 है, अप टू 10, दैट मीन्स टोटल 10 ही नंबर है। तो हम लिखेंगे 1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल n लेस देन इक्वल टू 10, सेट ओवर। अब चेक कर लो एक बार आंसर राइट है या रॉन्ग है। n की जगह पर आप 1 डाल दो, 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1, 2 लिख दो, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 लिख दो, 3 स्क्वायर 9, 10 लिख दो, 10 स्क्वायर 100। तो आंसर करेक्ट है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया कि एक सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 में उल्टा है, सेट रोस्टर फॉर्म दिया गया है, उसको कन्वर्ट कर किया सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर? Okay, our next question, list of the element of the following set. List of the element of the following set, that means our question is set builder form is present. Here we can written in roster form. So here first question, A is equal to set of आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछे कि कन्वर्ट द सेट बिल्डर फॉर्म इनटू रोस्टर फॉर्म, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कन्वर्ट रोस्टर फॉर्म इनटू सेट बिल्डर फॉर्म, और इस टाइप का क्वेश्चन का हेडिंग भी हो सकता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें आपको डिसाइड करना है ये कौन से फॉर्म में है। फर्स्ट तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसको लिस्ट मीन्स रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो A इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। तो we know that natural number, that means 1 2 3 up to infinite, and here condition is present कि odd natural number, so odd natural number है 1 3 5। तो हमारा आंसर रहेगा A इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 3 5। अब काफी सारे स्टूडेंट यहाँ 1 3 5 लिख के सेट ओवर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। x फ्रॉम x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो आपको ध्यान रखना है यह एंडलेस टर्म है, आपको सेट ओवर नहीं करना है, उसको डॉट 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 करके लिखना पड़ेगा, अदरवाइज उसके मार्क नहीं मिलेंगे, वो टोटली रॉन्ग होता है। तो आपको ऐसे ही लिखना है 1 3 5 मीन्स ऑड नंबर लिख के फिर अप टू इनफाइनाइट तक लिखना है। इस ये डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स दिस टर्म इज गोइंग फ्रॉम अप टू इनफाइनाइट फॉर्म। सो आंसर रहेगा A इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 3 5 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर? B is equal to set of, now our second question, B is equal to set of x from x is an integer. Integer, that means all these negative number, 0 as well as all the positive numbers, and minus 1 by 2 less than x less than 9 by 2. अब minus 1 by 2 that means minus 0.5, less than x less than 9 by 2 that means 4.5। हमें माइनस 0.5 एंड 4.5 के बिटवीन में जो इंटीजर आते हैं वो लिखना है। तो माइनस 0.5, सपोज हम नंबर लाइन पे अंडरस्टैंड करें तो माइनस 0.5 यहाँ है एंड 4.5 सपोज यहाँ है। तो इसके बिटवीन में जो नंबर है वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 एंड 4 रहेंगे। तो उसका आंसर रहेगा 0 1 2 3 एंड 4।
क्लियर। हमें इसमें फर्स्ट तो यहाँ इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर डेट मीन्स वो उसका आंसर तो नंबर फॉर्म में आएगा, यहाँ तो पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। तो -0.5 और 4.5 के बिटवीन में जो इंटीजर है वो है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो उसका आंसर रहेगा सेट ऑफ 0, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है C is equal to set of x from an x is integer, अगेन इंटीजर। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हो आप। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -4, सॉरी लेस देन इक्वल टू 4। तो सपोज हम यहाँ स्क्वायर रूट रिमूव करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 मीन्स -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, और लेस देन इक्वालिटी है तो -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स -2 और 2 के बिटवीन के जितने भी इंटीजर्स नंबर है वो आ सकते हैं, और -2 और 2 तो आएगा ही। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, तो C इज इक्वल टू सेट ऑफ, अदरवाइज आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। सपोज यहाँ 0 लिखा, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और 0 से 4 बड़ा है तो 0 आएगा। 1 लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो 1 भी 4 से बड़ा नंबर है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 1 भी आएगा। -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा तो वो भी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। अब -2 रख के देखो, -2 स्क्वायर डेट मीन्स 4, 4 लेस देन इक्वालिटी है तो वो भी हम कंसिडर करेंगे, और 2 लिख सकते हैं तो 2 भी कंसिडर करेंगे। यहाँ इंटीजर फॉर्म है डेट मीन्स पॉइंट वाले नंबर जो है हमें कंसिडर नहीं करने हैं। तो उसका आंसर रहेगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। हमें ऐसे लिखना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, बट आंसर का फॉर्म तो यही आना चाहिए, बिकॉज ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आंसर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि D इज इक्वल टू सेट ऑफ x फ्रॉम x इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल। ये तो बहुत आसान है। फर्स्ट लेटर है L, सेकंड लेटर है O, थर्ड लेटर है Y, फोर्थ लेटर है A एंड वापस फिफ्थ लेटर है L। L ऑलरेडी यहाँ आ चुका है तो हमें रिपीट करना नहीं है। तो आंसर रहेगा D इज इक्वल टू सेट ऑफ L, O, Y, A। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको खुद सॉल्व करना है। हम जरा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। E is equal to set of x from x is a month of a year not having 31 day। टोटल 12 मंथ है, उसमें जितने भी मंथ है उसमें 31 डे नहीं है। ऐसे मंथ हमें कंसिडर करने हैं। जैसे फरवरी है उसमें 28 डे होते हैं, कभी 29 डे भी होते हैं, लीप ईयर आ जाता है तो उसमें 31 डे तो नहीं है, तो फरवरी आएगा, अप्रैल आ सकता है, राइट। तो आपको ऐसे मंथ निकालने हैं कि जिसमें 31 डे नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, सिर्फ मंथ के नेम लिखने हैं और आंसर सेट के फॉर्म में लिखना है। क्लियर।